बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का गेस्ट पेपर लेके आई हूँ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2026। तो जो बच्चे अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि इस पेपर को अटैम्प्ट करें। अभी मैं इसके आंसर्स आपको नहीं बताऊंगी, आप इसे खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी अवेलेबल है और आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो बायोलॉजी का गेस्ट पेपर है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2026। आप सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा उसके लिए आपके पास टाइम अलाउड होगा 15 मिनट्स का। इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं ये 12 होंगे। 4 पॉसिबल आंसर्स आपको दिए हुए होंगे, ए बी सी एंड डी। अब जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपने क्या करना है, सर्कल कर देना है जो भी आपको आंसर बुक दी गई होगी उस पर। कटिंग और फिलिंग 2 और मोर सर्कल्स अलाउ नहीं होता, इसलिए आपने कट भी नहीं करना और 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स को फिल नहीं करना। एक ही सर्कल अच्छी तरह से सोच के और फिर उसको आपने फिल करना है। पहला एमसीक्यू है, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द डोमेन यूकेरिया? एस्क्रीशिया कोलाई, यीस्ट, कोरोना वायरस या फिर नन ऑफ दिस। Question number 3. Ribosomes are composed of RNA and proteins, DNA and proteins, carbohydrates and lipids, या RNA and carbohydrates. Question number 4. At which stage of mitosis chromosomes line up in the center? Prophase, metaphase, anaphase या फिर telophase. Question number 5. The epithelial tissue in the stomach wall is responsible for producing mucus, pepsinogen, hydrochloric acid या फिर all of these. Question number 6. Which component of an amino acid determines its unique properties? Amino group, carboxyl group, R group या फिर hydrogen group. Question number 7. Prosthetic groups are required by all enzymes, proteins in nature, loosely attached with enzymes या फिर tightly bound to enzymes. Question number 8. Light reactions of photosynthesis occur in plasma membrane of cell, cytoplasm of cell, stroma of chloroplast या फिर thylakoids of chloroplast. Question number 9. Which of the following plant nutrients is required in large amounts? Iron, zinc, potassium या फिर boron. Question number 10. Which ion plays a role in the opening of stomata? Sodium, potassium, calcium या फिर magnesium. Question number 11. What is the primary method of reproduction in yeast? Binary fission, spore formation, budding या फिर fragmentation. Question number 12. Embryo sac is formed inside filament, anther, style या फिर ovule. जी, नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट है और इसमें आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे एनी 5 क्वेश्चंस के। कोई से भी 5 सवाल आप इसमें से हल कर सकते हैं और हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो 2 इंटू 5 ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। इसका पहला पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। Question number 2. What is the role of observation and experimentation in the scientific method? Question number 3. What are the basic steps a scientist adopt in order to solve a scientific problem? Question number 4. Define histology. Question number 5. What are the 7 taxonomic ranks used in the Linnean system? Question number 6. Why viruses cannot be classified in any system? What is the difference between the cell wall of algae and prokaryotes? और लास्ट है व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा, इसमें भी आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे एनी 5 के। तो फर्स्ट पार्ट है डिफाइन कैरियोकाइनेसिस, हाउ डज क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन इन meiosis. Number 3, enlist the levels of organization from cells to organ system. Question number 4, what is the function of palisade mesophyll in the leaf? Question number 5, how do the 3 groups of carbohydrates differ in taste? Question number 6, define amino acid and draw its structure. जनरल स्ट्रक्चर आपको अमाइनो एसिड का दिया हुआ है ना, वो आपने यहाँ पर बनाना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन यीस्ट। और इसका लास्ट पार्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। अच्छा, उसके बाद एक और पार्ट होगा, इसमें भी आपने शॉर्ट आंसर्स ही देने हैं और ये 5 क्वेश्चन इसमें भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। Define an enzyme. What is its role in metabolism? Number 2, what do you mean by optimum temperature and pH? Question number 3, write the importance of oxidation reduction reactions. Question number 4, why is chlorophyll important for photosynthesis? Question number 5, define aerobic and anaerobic respiration. Question number 6, define macronutrients and micronutrients and give example.
Question number 7, define transpiration and its types. Question number 8, how is the transpiration pool important in plants? उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स होंगे, डिस्क्राइब द लीनियर सिस्टम इन डिटेल। दूसरा, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या फिर हाउ डज पीएच अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे या नहीं है, दोनों पार्ट्स आपने करने हैं। कोई से दो सवाल आपने करने हैं और जो भी दो सवाल आप करेंगे उसमें से आपने उसका ए और बी दोनों पार्ट्स करने हैं, ठीक है। लास्ट है, हाउ इज द ट्रांसपायरेशन पूल इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स, और बी पार्ट है इसका, डिफाइन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, स्टेट देयर रोल्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। तो एक बार आप इसको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पेपर को यहाँ वीडियो में सॉल्व करें तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको वीडियो में भी सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।